So hello to you all. Myself Monica Yadav and welcome back to my YouTube channel. I hope you people are totally fine. And this video is gonna so important for all those students who have been asking to me why do we have to learn Russian? Why Russian language is so important? Because जो अभी juniors आए हैं, they also have been asking to me why we have to study Russian? It's like we are only studying Russian. Why it is important? इतनी ज़्यादा नीड क्यों है? जब हम इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं और इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं, देन हमें रशियन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? So everything will be cleared in this video. So watch this video till the end. So the first point is importance of Russian language. So tell me one thing. If you are moving to a country जहाँ की mother language English नहीं है, so there English language is it enough? No. बिकॉज रशिया में बेशक यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश में पढ़ाई होती है, लगभग सभी रशिया में इंग्लिश मीडियम आ चुका है एज फार एज आई नो, लगभग. ओके, सो बेशक टीचर्स इंग्लिश में बोलते हो, पढ़ाई इंग्लिश में होती है, बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल होती है, बट स्टिल वी नीड रशियन लैंग्वेज because when we are going for practical classes, when we are going for trainings, when we are doing patient interaction, or when we are buying some stuff from stores, we really need Russian language because वहाँ पर English नहीं आती सभी को. ठीक है, सभी को यहाँ पे इंग्लिश का परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, इंग्लिश स्पीकर्स का बहुत कम इंग्लिश लोग बोलते हैं. सो वी रियली नीड रशियन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट एंड इट्स द रियलिटी, इट्स नॉट द मिथ, इट्स द रियलिटी. यहाँ के लोगों को बहुत कम इंग्लिश आती है, स्टिल दे ट्राई टू कम्युनिकेट ईच एंड एवरी टाइम whenever it is possible. Now the second point is medical rotation. हम मेडिकल स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारे मेडिकल रोटेशंस लगती है. अब हॉस्पिटल्स में क्या होता है, पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टाफ होता है जिनसे हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है. एज एन इंडिया पीपल डोंट नो इंग्लिश, here as well people do not know English, so obviously बात है we have to communicate them in Russian only. Russian language आएगी हमें तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे. अब कोई पेशेंट बता रहा है मेरे कहाँ पेन हो रहा है, वो मुझे रशियन आएगी तभी तो मुझे पता चल पाएगा ना, because that person is not able to tell that thing in English. So for communication we need Russian language. If you are a medical student, doesn't matter whether you are studying in English, but you have to learn in Russian as well. All those medical terms, all those things which are required to get to know, you have to study all those things in Russian as well, so that when a patient tells you where it is paining, what's the problem, what's the symptom he is having, so people will get to know, oh, he's saying that thing, and you can communicate in that way, right? So you should know Russian for your patient doctor interaction. Now the third point is some patient trust, building a patient trust. What is that? See, अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमें एक कंफर्ट महसूस होता है, हम चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, बता पाते हैं. इट्स लाइक व्हेन वी आर सैड और कुछ प्रॉब्लम में होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम अपनी मदर टंग प्रेफर करते हैं. हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी हम बहुत खुश होकर अपनी मदर टंग में चीज़ें बोलते हैं, राइट? तो लाइक दैट एज वेल, when a patient is explaining and you are talking in his language and you are giving him sympathies, emphasizing him in his language, अगर आप उसे रशियन लैंग्वेज में बात करोगे अच्छे से तो वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो पाएगा. वो ऐसा लगेगा, ओ फाइन, ही इज understanding me, he is getting me. So you are building trust on your patient if you are speaking Russian, राइट? एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, पर्सन अच्छे से आराम से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है आपको, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. सो इट इज़ अ डेवलपिंग अ ट्रस्ट एज वेल. Only few people will get this point, but yes, if you are getting this point, it means here you are understanding what I am trying to say. Because ऐसा होता है जब हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, अगर हम कुछ परेशान हो, अपनी प्रॉब्लम्स अपनी लैंग्वेज में शेयर करते हो, सामने वाला पर्सन वैसे ही समझ रहा होता है, then we get a surety, okay fine, this person is understanding this thing, we can communicate, we can share the things. So and it is very important for a doctor to build a trust between towards a patient. It is very important to build a trust between you and your patient, because if your patient is not trusting you, you're not going to be a good doctor. So the fourth point is regarding your academic कि academically ये
क्यों इम्पोर्टेंट है? सी, रशियन लैंग्वेज इज टॉट एज अ सब्जेक्ट। हम इसे एक सब्जेक्ट के जैसे लेके चलते कि ये भाई पास करना है कैसे भी करके, है ना, टफ है, ये पढ़ना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा. इफ यू स्टडी रशियन लैंग्वेज लाइक दैट, then we will not able to get it completely. But if we are studying Russian language, that oh we have to communicate, हमें बात करनी पड़ेगी. अभी हम लोग, अब जैसे हम लोग बचपन में थे, मम्मी हमें बोलना सिखाते थे, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें बोलना सिखाते थे. Why they taught us to speak? ताकि हम कम्युनिकेट कर सके. Here as well, अगर हम रशियन लैंग्वेज को ऐसे समझ के सीखेंगे कि हमें यहाँ पर लोगों से बात करनी सीखनी है, हमें यहाँ अपने पेशेंट से बात करनी सीखनी, अपने मेडिकल स्टाफ से बात करना सीखना है, देन ओनली वी विल एबल टू ग्रास्प दिस लैंग्वेज फास्ट. अगर हम इसको सरदर्द समझेंगे कि अरे नहीं भाई पढ़ना है ऐसे कुछ करके, तो इट विल बी टफ. ओके, एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी जो टीचर्स सिर्फ रशियन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती, एंड समटाइम्स वी हैव टू इंटरेक्ट विद देम एज वेल टू आस्क सम थिंग्स. सो वी हैव टू नो कि क्या बोलना है, कैसे पूछना है, क्योंकि हर टाइम ट्रांसलेटर यूज़ नहीं कर सकते, कभी नेट भी ऑफ रहता है. सो इट इज़ द नीड. जहाँ पर जिस कंट्री पर इंग्लिश इज़ नॉट अ मदर टंग, कोई और लैंग्वेज है मदर टंग, उनकी अपनी लैंग्वेज है, वी हैव टू लर्न दैट लैंग्वेज एनी हाउ, बिकॉज कभी ना कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़रूरत ना पड़े उस लैंग्वेज की. सो वी हैव टू लर्न एनी हाउ, whatever way is possible, okay, whether it is academically, medically, outside the university, anywhere, we have to learn it. And in some states, some part of Russia, in some universities, you have to give Russian licensing exam in Russian language only, so that as well you have to know Russian language so that you can pass that exam and you can get license from that country, from Russia. Now let's come to the fifth point, that is life outside the university. We students have our personal life as well, right? We have to go outside, बाहर जाना होता है, घूमना होता है, ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करनी होती है. तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए भी हमें रशियन लैंग्वेज चाहिए, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में अनाउंसमेंट्स रशियन में होती है, बसेस वगैरह में आप वो थोड़ी ट्रांसलेटर लगा के घूमेंगे बसेस में, तो उसमें रशियन लैंग्वेज में ही होती है. ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है तो सब जगह रशियन लैंग्वेज ही लिखा होता है, प्रोडक्ट्स पे रशियन लैंग्वेज लिखा होता है. और मैं तो भाई वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे तो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि कहीं कुछ इसमें मिक्स तो नहीं हो रखा, कहीं कुछ ऐड तो नहीं हो रखा. सो इफ़ वी आर नॉट स्टडिंग रशियन लैंग्वेज, हाउ विल गेट टू नो, राइट? तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपका कुछ कहीं से मेडिकल शॉप से कुछ सामान लेना हो गया, मेडिसिन वगैरह लेनी हो गई, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी हो गई, नॉर्मल आपको कपड़ों की शॉपिंग करनी हो गई, मोस्टली थिंग्स आर रिटन इन रशियन लैंग्वेज. सो ऑब्वियसली बात है, वी हैव टू नो दैट लैंग्वेज, ओनली देन वी विल एबल टू गेट द things, we'll able to communicate. If we are going in a restaurant and we do not know how to order, how we'll order, right, in Russian language, how we will eat food outside in restaurants and all. So for that as well we need Russian. So the last point is how to learn the Russian language effectively. So whatever class you are taking in your university, whatever they are providing, take it all. पूरी classes लो अच्छे से. Your teachers are gonna help a lot. Whatever Russian I am knowing, I'm just knowing because of her. I can speak because she taught us very well. So please take your university classes. Then try to write daily 10 to 15 new words. By this as well you will get to know many words, many things. Try to add up these sentences and just like that, and try to communicate with locals, because as much as you will communicate with local, you will get to know more about it. जितना बोलोगे आप, जितनी ज़्यादा रशियन लैंग्वेज की प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझोगे. क्योंकि समटाइम्स वी नो फ्यू वर्ड्स, राइट, बट वी डू नॉट नो हाउ टू कनेक्ट दोज वर्ड्स. ठीक है, उसको कनेक्ट करके एक सेंटेंस कैसे बनाए, उसको यूज़ कैसे करें, वी डू नॉट नो दैट. So when we are listening to a conversation, when we are doing a conversation, when we are trying to speak, we get to know many things. So at the end, I will say this thing only. See, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता. सिर्फ मेडिकल नॉलेज ही नहीं चाहिए होती डॉक्टर बनते वक्त. ठीक है, जब आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. पेशेंट को कोई चीज़ बतानी है, उसे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, आपको उसको बतानी है, उसके रिलेटिव को बतानी है, तो वो आपको इस तरीके से बतानी है कि वो उन्हें इतने ज़्यादा फील ना हो.
for that you really need a very great skill of communication, ताकि आप अच्छे से उन्हें समझा सके, उन्हें बता सके। एंड अगर आप उन्हें उनकी लैंग्वेज में समझाते हो तो वो कम्युनिकेशन थोड़ी ना ज़्यादा आसान हो जाती है, वो समझाना थोड़ा बेहतर हो जाता है, उनके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाता है, राइट। एक ट्रस्ट काइंड ऑफ डेवलप हो जाता है। ओ फाइन, वी आर ओके, फाइन, आगे क्या करना है, राइट। अगर हम कुछ उनकी लैंग्वेज में समझाएंगे, कुछ उनको उनके तरीके से बताएंगे, तो उनको वो चीज़ इतना ज़्यादा फील नहीं होएगी। इट्स लाइक ओके, हम ये ठीक कर सकते हैं, राइट। पॉसिबल वेज हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऐसे, अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आप जहाँ के भी पर्टिकुलर एरिया के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, थोड़ा उनका लिंग्विस्टिक कल्चर, थोड़ा उनका कल्चरल बिहेवियर जो होता है ना, आपको उसमें ढलना पड़ेगा। यू हैव टू बी लाइक दैट। अगर आप बच्चे को ट्रीट कर रहे हो तो हैव टू लाइक अ किड, अगर आप बड़े को ट्रीट कर रहे हो तो हैव टू लाइक दैट, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे इफ़ यू आर रियली वांट टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर। बिकॉज रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, रट्टा मार के कुछ नहीं होता। At the end, we have to treat the patient who will be sitting in front of us or lying in front of us. We have to treat that patient, and for that, you will really need many more things apart from just rectification of your books. So yeah, that was all. Why do we have to learn Russian language and all everything? I really hope that you like this video. And if you want to share your some of experiences, then comment box is open for you every time. And also if you want to suggest me some video topics, then also comment box is free for you, welcoming you all people. You can drop your suggestions, you can drop your experiences, जो भी आपके experiences रहे हैं रशिया में लैंग्वेजेस सीखते वक्त, या जो भी न्यू बच्चे हैं वो जो सीख रहे हैं वो कैसे सीख रहे हैं। You can share your experiences down the comment box. And I really hope that you like this video, and if you liked it, then please do share and subscribe to the channel, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।